إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اس کائنات کا مالک ہے، مختار ہے اور رزاق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے موضوع قرآن مجید کے علم کی اہمیت، یعنی دین اسلام میں علم کی اہمیت، قرآن مجید کی اہمیت کے ساتھ کیسی اس کی فضیلت ہے اور اس کے سیکھنے کے اور اس کے عمل کرنے کے کیا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں۔ محترم حضرات، ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس دین کے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی میں اللہ رب العالمین نے علم دین کو سیکھنے کے تعلق سے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں جس بات کی تعلیم دیا وہ تعلیم تھا اقرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس نبی کو پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس امت کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسری چیزوں کا حکم دے سکتے تھے پہلے وحی کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم سیکھنے کا حکم اور پڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے، یہ اس لیے کہ علم ایک نور ہے،
علم ایک روشنی ہے جو انسان کو تاریکی سے، ضلالت سے، گمراہی سے، شرک سے، بدعات سے اور ہر بری چیز سے انسان کو بچا کر کے نجات کی طرف اور کامیابی کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے ہیں، جو جاہل ہیں، ان دونوں میں کبھی برابری ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو علم سیکھنے کا حکم دیا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علم کو مقدم رکھا ہے وہ علم ہے دینی علم، اور دینی علم کے اندر قرآن مجید کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے، بقیہ علوم دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسرے علوم مت سیکھو، بلکہ ہر وہ علم جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے، اللہ سے قریب کرے، ہر وہ علم جس کے ذریعے تمہیں رب کی معرفت حاصل ہو، ان تمام علوم کو شریعت نے تمہیں سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ان تمام علوم کے اندر رب سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا دین یعنی قرآن مجید کا علم ہے۔ قرآن مجید جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، لہذا قرآن مجید کا علم اس امت کے ہر افراد کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے علم کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ جب یہ علم نہیں آیا تھا اس سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ علم کی کمی کی وجہ سے جہالت میں بھٹک رہے تھے اور دنیا بھر کی جو برائی اور غلط کاموں کے اندر جو مبتلا تھے، ان کے پاس علم کی کمی کی وجہ سے یہ تمام علوم کو اور تمام امور کو انجام دے رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا تو جن کو زمانے جاہلیت کے اندر ان پڑھ گوار کہا جا رہا تھا، جو اونٹ اور بکریوں کے چرانے والے تھے، جو کچھ دنیا کے اندر اپنا نام نہیں کر پائے تھے، ایسے لوگوں نے کچھ بھی مدت کے اندر میں، قلیل سی مدت کے اندر میں اس قرآن مجید کے ذریعے سے اپنا ایک مقام بنا لیا، اور انہیں اللہ نے جو عزت دیا قیامت تک بھی سمجھے ہم ان کی عزت کو اور ان کے احترام کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے نزول ہونے کے بعد جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا، اور بڑی بڑی عمر کے اندر انہوں نے قرآن مجید کو سیکھا، اور قرآن مجید کو سیکھا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کو 40 سال 50 سال کی عمر میں ایمان لانے کے بعد انہوں نے یاد بھی کیا باقاعدہ طور پر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بیسٹ انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے، اللہ کی کتاب کو دوسروں کو سکھاتا ہے، اس علم کو انسان پھیلاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا علم ایک انسان سیکھے، دوسروں کو سکھائے، وہ اس کو سکھائے، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ ایسا علم ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ ذرا غور کیجئے کہ تم میں سب سے بہترین انسان ہے۔ بہتر انسان کیسے ہوا؟ وہ قرآن مجید کو سیکھنے کی وجہ سے وہ انسان بہتر ہوا، بہتر مقام قرآن مجید کی وجہ سے ان کو ملا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ جب انسان قرآن مجید کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، تو قرآن مجید کے علم کی وجہ سے اس انسان کا مقام اور پوزیشن کیسے بڑھ جاتا ہے سماج میں، معاشرے میں، اللہ کی نظر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، یعنی ان کی عمر سمجھے 7 سے 8 سال کی عمر، اللہ اکبر، قرآن مجید کا شوق تھا، انہوں نے قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ انہوں نے یاد کر لیا۔
कुरान मजीद का हिस्सा सबसे ज्यादा इनको याद था। पूरी बस्ती में, पूरे मोहल्ले में, पूरे कबीले के अंदर ये 7 से 8 साल की उम्र का बच्चा अपनी कौम के लोगों का इमामत किया करते थे। नमाजों की इमामत, जनाजे की इमामत, सारी के सारी इमामत ही किया करते थे। बड़ों के इमाम हो गए, छोटों के इमाम हो गए, औरतों के इमाम हो गए, मर्दों के, बच्चों के, सब के इमाम हो गए, पूरे मोहल्ले के इमाम हो गए। अल्लाह तबारक व तआला, देखिए उस बच्चे को अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, एक मकाम दिया, किस वजह से? कुरान मजीद का इल्म हासिल करने की वजह से। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद का इल्म सीखता है। और अल्लाह की नज़र में जो इंसान बेहतर हो जाए तो उस इंसान को किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत है क्या? रब्बुल आलमीन उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है, और रब्बुल आलमीन जिस बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के मखलूक भी उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देती है। तो मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद इंसानी ज़िंदगी में चाहे इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर हो, ये किताब जब ज़िंदगी में दाखिल होती है तो ये किताब इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करती है। ये किताब इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, बयान करते हैं कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के जरिए से, यानी कुरान मजीद के जरिए से बहुत सारी कौमों को क्या किया? इज्जत दिया, सरबलंदी दिया, कामयाबी दिया, दुनिया के अंदर हुकूमत और सल्तनत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता किया। और जब जिस कौम ने इस किताब को छोड़ दिया तो उस किताब को छोड़ने के बाद अल्लाह ने उस कौम को जलील कर दिया, रुसवा कर दिया, कहीं का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, इस हदीस के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो इस हदीस पर अगर आप गौर करेंगे, दुनिया के बहुत सारे असबाब जहां मुसलमानों की आज पस्ती और जवाल के हैं, वहां पर एक सबब जो अहम सबब नजर आता है वो ये है कि आज हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया है कि नहीं? ये हकीकत बात है कि नहीं? आज हमने अल्लाह की किताब को सिर्फ और सिर्फ क्या है? कसम खाने के लिए, शादी विवाह में तोहफा तहाइफ देने के लिए, घर के अंदर शुकेस में सजा कर रखने के लिए आज अल्लाह की किताब को हमने सिर्फ रमजान में बस हाफिज की जबानी सुन लेना, बस यहां तक हमने कुरान मजीद को महदूद कर दिया है। आज कुरान मजीद को हमने फातिहा खानी के लिए, मुर्दों के लिए हमने इस कुरान मजीद को खास कर दिया है। मेरे भाइयों, ये किताब जिंदों की किताब है, मुर्दों की किताब नहीं, बल्कि जिंदा लोगों की किताब है। लिहाजा इस किताब से जो इंसान जिस कदर अपना ताल्लुक पैदा करेगा, उस इंसान को कल क़यामत के दिन उतना ही बड़ा मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल माहिर बिल कुरान मअस सफरतिल किराम बररा, जो लोग कुरान मजीद के माहिर होते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह के बुजुर्ग फरिश्तों के साथ उनका शुमार किया जाएगा, बुजुर्ग फरिश्तों के साथ वो लोग होंगे। मेरे भाइयों, अब अंदाजा कीजिए कि जो इल्म कुरान मजीद का इतना फजीलत वाला इल्म हो, तो क्या उस इल्म को हमें सीखना नहीं चाहिए? आज दुनिया की हम बड़े बड़े उलूम और डिग्रियां अपने बच्चों को हम सिखाते हैं, सिखाएं, जरूर सिखाएं। हमारी कौम को जरूरत है कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, सब कुछ बने, लेकिन पहले कुरान मजीद को मुकद्दम रखो जिंदगी के अंदर। पहले कुरान को मुकद्दम रखो, अपने बच्चे बच्चियों को पहले कुरान की तालीम दो। जब हम अपने बच्चों बच्चियों को कुरान मजीद की तालीम देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी आने वाली नस्ल को कम से कम कुरान मजीद रीडिंग करना, तिलावा करना, देखकर पढ़ना तो कम से कम वो सिखा सकती है। आज कितनी अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे भाइयों कि आज हमारे उम्र 40 साल, 50 साल, 35 साल, 60 साल हो गए, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं आता है तो वो कुरान मजीद हमको पढ़ने नहीं आता है। कल अल्लाह के पास हम क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों? दीन पर हमने 40 साल अमल किया, 50 साल अमल किया, 70 साल अमल किया। अल्लाह ने जो इतनी लंबी मुद्दत और मौका जो हमको इनायत किया है, क्या हमारी जिंदगी के अंदर इतना मौका नहीं मिला कि हम कुरान मजीद को सीख लें? कुरान मजीद को सीखिए, कुरान मजीद को अपने बच्चों को सिखाइए और कुरान मजीद की तालीम को आम कीजिए। कुरान मजीद को सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है।
आप बड़े हो गए कोई बात नहीं है, आप कुछ नहीं जानते, आप कायदा से शुरू करें, नूरानी कायदा से पढ़ना शुरू करें। आप अगर मेहनत करेंगे और तवज्जो के साथ अगर सीखेंगे, 2 से 3 महीने के अंदर में आप कुरान मजीद को सीख सकते हैं। चंद पारे अगर आपको सही से पढ़ना आ गया, आगे की तमाम पारों को आप पढ़ सकते हैं। और आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। कहा कि जो लोग कुरान मजीद को सीखते हैं और सीखते हुए उनको जो तकलीफ होता है, उस पर भी अल्लाह अजर सवाब देता है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद को जो इंसान अटक अटक के पढ़ रहा, हिज्जे कर कर के पढ़ रहा, लेटर को जोड़ जोड़ करके वो पढ़ रहा इंसान, उस इंसान के लिए डबल सवाब है। अब मिसाल के तौर पर हम और आप अगर पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, एक हर्फ पे 10 नेकी है। अलिफ लाम मीम हमने कहा, हर हर्फ पे हमको 30 नेकी मिल गया। लेकिन एक इंसान है जो अटक अटक कर यानी एक एक हर्फ को अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ीन इस तरह अटक अटक के एक इंसान पढ़ रहा है, हिज्जे कर कर के एक इंसान पढ़ रहा है कुरान मजीद को, लेकिन वो छोड़ता नहीं, अपनी मेहनत को, कोशिश को जारी रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो अटकता है, पढ़ता है, फिर भी अटकता है, फिर भी कोशिश करता है, लेटर को ज्वाइंट कर करके पढ़ने की वो कोशिश करता है। कहा लहू अजरान, ऐसे इंसान के लिए डबल सवाब है। एक इंसान जो सीधे तरीके से पढ़ते जाता है उसको एक सवाब है, लेकिन उसको जो एक तकलीफ हो रही है पढ़ने में और रुकावट हो रही है, उसके बावजूद जो वो कोशिश कर रहा है, उस पर भी उसको एक सवाब है मेरे भाइयों। तो कुरान मजीद को हम और आप अज़्म करें, इरादा करें कि कुरान मजीद को हमको सीखना है, कुरान मजीद के इल्म को हमें आम करना है। आज कुरान मजीद को हमने किताब हिदायत नहीं समझा है, बल्कि किताब जो हमारी मुकद्दस किताब है ये समझ करके हमने उसको रख दिया है, जिसकी वजह से आज हम दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई और ज़वाल पजीर होते चले जा रहे हैं मेरे भाइयों। लिहाजा कुरान से अपना ताल्लुक पैदा करो, कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो। कुरान मजीद वो किताब है जो इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर देती है। एक एक आयत को सुन करके सहाबा की ज़िंदगियाँ बदल गई। आज हम पूरी कुरान सुन लेते हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता मेरे भाइयों। आप देखिए कितने ऐसे सहाबा के वाकयात हैं कि कुरान मजीद की एक आयत ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। आपको मालूम है जुबैर इब्ने मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु मगरिब की नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तूर की इस आयत की तिलावत कर रहे थे। अम खुलिकु अम हुमुल खालिकून, क्या खुद से तुम पैदा हो गए या तुम्हारे कोई पैदा करने में और तुम्हारा कोई खालिक भी है? खुद से दुनिया के अंदर आ गए हो या तुम्हारा कोई खालिक है, कोई तुम्हारा क्रिएटर है? जब इस आयत को उन्होंने सुनी, एक आयत सिर्फ अम खुलिकु अम हुमुल खालिकून, इस आयत को सुनने के बाद कहते हैं कादल कल्बु यतीर, इस आयत ने मेरे दिल को, मेरे ज़मीर को झिझोड़ दिया। ऐसा लगने लगा मुझे कि मेरा दिल, मेरा कलेजा मुंह से बाहर आने लगा है। और मैंने भाग करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर के कहा, अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मैं मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुरान मजीद को आप उस नाहिए से आप लेने की कोशिश करें जहां बहुत सारी चीज़ों को हम और आप सीखते हैं, वहीं पे कुरान मजीद को भी आप सीखें। यकीनन कुरान मजीद की आयतें हमारे रोंगटों को खड़े करेगी, हमारे अंदर से हमारी ज़मीर को जिंदा करेगी, हमारे दिल को जिंदा करेगी और हमको अल्लाह से करीब करने में ये तमाम चीज़ें मुआविन और मददगार होगी मेरे भाइयों। तो लिहाजा कुरान मजीद अगर इंसान अपने बच्चों को अगर कुरान मजीद सिखाता है, कल उसके लिए कितना बड़ा इनाम है, कल कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसकी औलाद जो कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है, कुरान मजीद को याद किया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी वजह से अल्लाह उसको इज्जत देगा, सरबलंदी देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी इंसानियत के सामने। कितना मुकद्दस है और कितना काबिल एहतराम है वो दिल, वो दिमाग, वो सीना जिसके अंदर अल्लाह की किताब होती है, अल्लाह का कलाम होता है, अल्लाह तबारक व तआला की किताब के ताल्लुक से इंसान सोचता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से कहेगा इक़रा वरतक़ी, कुरान मजीद को तू पढ़ता जा और अपनी मंजिल को तय करता जा।
اقرا वरतकी। दुनिया के अंदर ही सिर्फ पढ़ने से मसला ख़त्म नहीं हो जाता, अजर और सवाब का सिलसिला इंसान के मरने के बाद भी अल्लाह ताला उसका सिलसिला बाकी रखेगा। कहेगा इक़रा वरतकी, पढ़ता जा बंदे, और जहां तक तू पढ़ता जाएगा, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वहां पे तेरा क्या होगा, आखिरी मंजिल होगा, तेरा ठिकाना होगा। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हम कुरान मजीद को याद करें। कितने हम में से ऐसे हैं जो यानी हम मामूली जो नमाज पढ़ते हैं, हम आम इबादतों के अंदर हमको छोटी छोटी सूरतें भी हमको याद नहीं होती हैं, छोटी छोटी सूरतें भी हमको याद नहीं होती है। लिहाजा मेरे भाइयों, हम कम से कम अम्मा जुज़ तो भी उसको हम मुकम्मल याद करने की कोशिश करें, और बकिया कुरान मजीद को हम तिलावत की शक्ल में पढ़ने की कोशिश करें, ताकि ज़िंदगी के अंदर कल हम दुनिया से जाते हुए हमको अफसोस ना रहे इस बात का कि हमने 40 साल गुजारे, 50 साल गुजारे, लेकिन हमको कुरान पढ़ने नहीं आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में हमें शर्मिंदगी ना हो, ज़िल्लत और रुसवाई का सामना ना करना पड़े। लिहाजा मेरे भाइयों, कौन सा अमल कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमको कामयाबी दिला दे, और कौन सा अमल हमें अल्लाह के पास जलील रुसवा करके जहन्नम में दाखिल कर दे, हम और आप इस बात को नहीं जानते हैं। लिहाजा कुरान मजीद की बात सूरतें हैं जिसकी बड़ी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह बकरा है, सूरह बकरा की बड़ी फजीलत है। कहा कि जहाँ और जिस जगह सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, जिस घर के अंदर, वहाँ पर शयातीन के बसेरे नहीं होते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, ये दोनों क्या है, कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक़ में साया बन करके, गमामतान, साया बन करके आएंगे। और इसी तरह आपने कहा सूरतुल मुल्क की फजीलत, ये सूरह वो सूरह है जो बंदे को अज़ाब क़ब्र से बंदे को महफूज रखती है। इसलिए सूरह का नाम क्या है, मानिया और मुंजिया, सूरतुल मुल्क। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुरान में एक सूरत है जिसके अंदर 30 आयत है, ये अपने पढ़ने वाले को कल अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगी। तो मेरे भाइयों, आप सोचिए कि कितनी फजीलत की बात है। हम इन आयतों को, इन सूरतों को हम पढ़ने की कोशिश करें, और इन आयतों पे हम अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के हक में सिफारिश करेगी कि परवरदिगारा, रिक्वेस्ट करेगी, परवरदिगारा मेरे तेरे इस बंदे को अल्लाह तू माफ कर दे, क्योंकि दुनिया के अंदर मुझे पढ़ने की वजह से इसको सोने मैंने नहीं दिया थी, यानी मुझे पढ़ने की वजह से इन्होंने अपनी नींद को कुर्बान किया था परवरदिगारा, लिहाजा आज तो इसको माफ कर दे, इसको बख्श दे। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद से हम अपना रिश्ता जोड़ें और अपने आलो औलाद को कुरान मजीद से हम जोड़ने की कोशिश करें। यकीनन अगर कुरान पे अमल पैरा हम हो जाएं तो यकीन माने कि हमारी ज़िंदगी के अंदर वो इनकलाब बर्पा होगा जो इनकलाब के सहाबा किराम की ज़िंदगियों में हुआ था, वो इनकलाब बर्पा होगा जो समाज और मुआशरा सहाबा किराम के ज़माने में तैयार हुआ था। अब ज़रूरत इस बात की है कि हर इंसान अपनी जगह पर कोशिश करे। अब इंसान ये सोचता है क्या भाई मैं अकेला पढ़ लिया तो क्या होगा, यही सवाल, ये शैतान का सवाल है। ये सवाल हमारे जहनों के अंदर आकर के हमें अपने मकसद से पीछा कर देता है, अपने मकसद से हमें पीछा करके हमें नाकाम और नामुराद कर देता है। लिहाजा इन चीज़ों पे हम ध्यान और तवज्जो ना दें, बल्कि हम अपने दिलो दिमाग के अंदर वो ख्याल जो हमें आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाने वाली है, उन तमाम चीज़ों पर हम ध्यान दें। तो अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन ये कुरान मजीद का इल्म जो दीन का इल्म है, उसकी शरीयत ने इतनी अहमियत बयान की है, इस इल्म को और इस अहमियत को अपने दिलो दिमाग के अंदर हमें उतारने और उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिक व रऊफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अभी आप कुरान मजीद की इल्म की फ़जीलत के ताल्लुक़ से आप बात सुन रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को किताब हिदायत सारी इंसानियत के लिए, क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए अल्लाह ने बनाया है। अब जिन लोगों ने भी इस इल्म को सीखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर अल्लाह ने इज़्ज़त का वादा किया। आप देखिए दुनिया के अंदर जो इस कुरान से जुड़े, कुरान मजीद के उलूम से जुड़े, आप देखिए कि हज़ारों की तादाद में कुरान मजीद की तफसीर लिखी गई। बड़े बड़े मुफस्सिरीन इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, और बड़े मुफस्सिरों में सबसे पहले आप सुनते हैं नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु
कुरान का। आप उलमा की ज़बानी सुनते हैं कि इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा, यानी कुरान मजीद की जिन लोगों ने तफसीर बयान की है उन लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा इज्जत दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर अल्लाह ने दिया है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, कुरान मजीद के इल्म के अंदर हम गहराई हासिल करने की कोशिश करें और कुरान मजीद को अल्लाह ने अगर हमको इल्म और समझ दिया है तो हम अपनी हैसियत और अपने एतबार से हम कुरान मजीद को हम पढ़ने और सीखने और उसके अंदर जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम सही तरीके से और सही लोगों से, याद रखें ये बात, कुरान मजीद का इल्म जो है सही उलमा से सीखना। कभी भी दुनिया के अंदर इस इल्म को सिखाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सही उलमा से सीखना, आयतों की तफसीर सही उलमा से जानना। कुरान मजीद को की हर चीज़ को आप सिर्फ गूगल पे जाकर के मालूम नहीं करना। आपको मालूम है यहूदियों ने भी कुरान मजीद की तफसीर कर डाली है, कादियानियों ने भी कर डाली है, शियाओं ने भी की है। अब आपको कैसे मालूम होगा? अगर आपके पास इल्म की कमी है, आप उतना इल्म और दर्क नहीं रखते हैं तो वहां पर जाकर के आप फर्क कैसे करेंगे? तो लिहाजा आप जब तक सही उलमा की तफसीर अगर आप सुनेंगे नहीं, सही उलमा की तफसीर को अगर आप जानेंगे नहीं, आप फर्क नहीं कर सकते मेरे भाई, गुमराह हो जाएंगे, जलालत में चले जाएंगे। लिहाजा आज की नई नस्ल से मैं खास करके कहता हूं कि उलमा से जुड़ें और उलमा से खास करके इस्तिफादा करने की कुरान और हदीस को आप करने की कोशिश करें, जिसका आपको क्या है फायदा ये होगा कि आप गुमराही से बचेंगे। और उलमा वही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उलूम के यानी कुरान मजीद के इल्म और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने वक़्फ़ किया और उलमा की जमात ने उन्हें इस बात की सर्टिफिकेट दी कि ये इस लायक है कि कुरान मजीद की आयत की तफसीर बयान कर सकता है, अहादीस को ये वाज़े कर सकता है, लोगों को समझा सकता है मेरे भाइयों। तो लिहाजा इन बातों को अपने ज़हन के अंदर रखने की कोशिश करें मेरे भाइयों। और दूसरी बात आपके सामने मुझे ये करना है कि आज कुरान मजीद के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए और कुरान मजीद को आम करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए SKSM की तरफ से, SKSM साउथ कर्नाटका सेल्फी मूवमेंट की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है कुरान मजीद द लर्निंग कुरान के नाम से। आप उससे इस्तिफादा करें, यानी ख़ास करके कन्नड़ ज़बान में और इंग्लिश ज़बान के अंदर मुख्तलिफ़ सूरतों को एक बुक की शक्ल में जमा किया गया है और उसके एग्ज़ाम भी होते हैं ताकि उसके जरिए से या उसके बहाने से इंसान कुछ सीखे और कुछ नॉलेज हासिल करे। तो लिहाजा ये इन तमाम चीज़ों से आप जुड़ें और बाकायदा तौर पर इसके एग्ज़ाम्स भी है, आने वाला महीना 30 तारीख तक उसका टाइम है। तो लिहाजा इसकी जो बुक्स हैं और इसके जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं, यानी इस कोविड की वजह से ये ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कर दिया गया है, तो इसको आप हासिल कर लें आप, और ये एग्ज़ाम जो पेपर्स वगैरह ये तमाम चीज़ें लेकर के आने वाला महीना 30 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने शिरकत नहीं की है, अभी भी मौका है, वो शिरकत करें और दूसरों को भी इस बात की तालीम दें। मेरे भाइयों, दुआओं की कुछ दरख्वास्त आई हुई है। उससे पहले ये कि आपसे जिस तरह से मैं हर जुमा रिक्वेस्ट और दरख्वास्त और अपील करता हूँ कि आप हमारे मस्जिद का जिस तरह से हर जुमा ताउन करते हुए जाते हैं, आज भी ताउन करना ना भूलें कि आपके ताउन के ज़रिए से एक दीन का काम हो रहा है, दीनी सेंटर चल रहा है और इसके ज़रिए से किताब व सुन्नत की दावतें आम हो रही हैं। तो लिहाजा आपका पैसा देना, आपका खर्च करना, ये आपके लिए बाइस अजर सवाब है। लिहाजा आपको अल्लाह ने जो भी सलाहियत और हैसियत दिया है, जाते हुए ज़रूर आप मस्जिद का ताउन करते हुए जाएं ताकि ज़िम्मेदार को मस्जिद की अखराजात को मुकम्मल करने में किसी भी तरह की तकलीफ़ और परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात यह है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी ताउन जिस तरह से भी पैसे की शक्ल में, मटेरियल की शक्ल में देना चाहते हैं, तो आप लोग बाकायदा तौर पर मस्जिद के ज़िम्मेदारों से मिलें और मिल करके उन तक अपना ताउन पहुंचा दें ताकि काम ना रुके, काम जितना जल्द हो सके मुकम्मल हो जाए और ख़वातीन के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो, वो भी बाकायदा तौर पर किताब व सुन्नत की बातें आकर के सुन सकें, दीनी क्लासेस वगैरह वो तमाम चीज़ें चल सकें आसानी के साथ। और मेरे भाइयों, आपके दिए हुए माल को अल्लाह कबूल करे और बकिया माल के अंदर अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, दुआ की दरख्वास्त आई हुई है कि मस्जिद के एक मुसल्ली हैं, उनकी सर्जरी हुई है। आप लोगों से दर्दमंदाना अपील है कि आप उनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफाए आजिला कामिला अल्लाह नसीब फरमाए, और जो भी मरीज़ है उन तमाम को अल्लाह शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, और जो इस दुनिया से गुज़र गए अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، میں آخر میں ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھیں. آخری وقت میں کیوں آتے ہیں؟ نہ آپ خطبہ سنتے ہیں، نہ اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے. امام جب ممبر پہ چڑھتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، آپ کا شمار جمعہ کے لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کے اعضا گواہی دیں گے کہ آپ نے حاضری دی تھی، لیکن آپ اتنی بڑی محرومیت جمعہ کے دن کے اجر و ثواب سے اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں یہاں سے جو لوگ آخر میں آتے ہیں، آخری میں ہمیشہ آتے ہیں. کیا ہے زندگی کا کیا بھروسہ ہے بھائی؟ جمعہ کی احترام کرو، جمعہ کے دن کم سے کم اول وقت میں آنے کی کوشش کرو. یہ بارہا یہ بات کہی جاتی ہے، ذرا اپنے اندر احساس پیدا کرو، ایمانی غیرت اپنے اندر پیدا کرو. دنیا کے اندر اگر کچھ لینا ہے، کچھ ملے گا تو گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہو، لائن میں پہلے کتنا دیر کھڑے رہتے ہو، لیکن جمعہ کے دن اللہ اکبر ہمارے پاس یہی جمعہ کی اہمیت ہے. جمعہ کے دن کی ذرا میرے بھائیو سوچو، ہم نے دین کو اتنا معمولی، چلو دیکھیں گے لاسٹ ابھی باقی ہے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ. ایسی سستی اور کاہلی سے توبہ کرو، اللہ سے معافی طلب کرو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ تمہیں اول وقت میں آنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین. میرے بھائیو ایسی قیام اور ایسی حرکتیں مت کرو، اول وقت میں آنے کی کوشش کرو. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی آل عز وتم واہم واکبر.